हमने 400 राइटर्स को अभी तक के हेल्प किया है उनकी बुक पब्लिश करने में। आज से अगर हम 25 साल पहले की बात करते हैं ना, तो राइटिंग एक हॉबी थी। इंडस्ट्री सिंपल है अगर आप सिंपल तरीकों से काम करो तो। अभी एक ऑथर के पास में उतनी पावर है कि वो अपने थॉट्स को रीडर तक के डायरेक्टली भी पहुंचा सकता है। मेरे को कोई बुक लिखना है, सो हाउ टू स्टार्ट दैट? When the book is completed, then the next step is editing. एक बुक में क्या अट्रैक्टिव होता है? I think एक जो मिस्टेक अभी मैं काफी कॉमनली देखती हूँ वो है सेल्फ पब्लिशिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है? ब्रेकअप हुआ है, मेरे को बुक लिखनी है, सोशल मीडिया पे मैसेज डाल दिया हमें कि अब आप पब्लिश करवा दो। What skills will author need beyond writing nowadays? Marketing is extremely important in today's time of publishing. E-books is much more affordable for everyone. What is the real reason normally books fails? Hello and welcome to Live with Monica podcast. So today on the podcast we have the founder of Mithas Services, a publishing house. So we'll be talking about they work closely with the authors. So today in the podcast we'll be talking about the challenges for the authors and the reality behind the publishing house and the industry and the process of publishing a book. So hello Devanshi, how are you? Hey, I'm very good and I'm so happy to be here on this podcast. Yeah, so first of all, just let us know about your journey to this, the publishing house, and you're also author also. Yes. Yeah. So my journey started in class 9th. My love for writing started when I was in class 9th. Wow. So I used to be, someone who would love observing things around. क्या हो रहा है वहाँ पे, what is happening between two people. Okay. I am someone who would observe everything from school days. Okay. So in class 9th also, I was just looking around and seeing things. And I used to think कि यार अगर इस particular moment में हम थोड़ा drama add कर दें तो ये कितना interesting हो जाएगा. So that is how my journey of writing my first book started. It was called The Book of Dreams Unimaginably True. Oh. And it was launched when I was in class 12th. तो मैंने board और first book साथ में launch किया. Okay. And then that was one moment, the book launch, when I knew कि मुझे करना तो कुछ इसी इंडस्ट्री में है. And that was also a foundational year क्योंकि आगे के decisions were based on that, right? Right. So post that, I wrote First Love Last Forever, and then the third book that came out, that book became a turning factor for my journey. It was called No Matter What I Do, I would end up falling for you. It is published by Srishti Publishers, and that book became a bestseller within 2 months. So hundreds of readers reaching out. Every day there were so many reviews, and that was also a time when demonetization was happening. Okay. तो उस समय अगर कोई cash लगा के मेरी book ले रहा था तो it really meant a lot for me that Right. okay, that was an effort people were making. So that book made my decision of being in the writing and publishing industry stronger, and post that I wrote another 4 books, and now today we are here with the 8th book as we sit together. So this journey of writing was something I really enjoyed. मतलब the overall idea कि कोई author एक thought है उसके मन में या एक observation है, Right. उसे reality बना सकता है, was very fascinating to me. So उस thought के basis पे we started up with Mithas Services. It's been 7 years that we have been operational. हमने 400 writers को अभी तक के help किया है उनकी book publish करने में. And during this journey, I kind of realized that book publishing में बहुत scope है, but industry क्योंकि थोड़ी सी distanced रहती है लोगों के लिए, तो उन्हें लगता है यार ये बहुत difficult industry है. Right. Industry simple है अगर आप simple तरीकों से काम करो तो. So that was the idea on starting Mithas Services, and एक simple thought process था कि everyone is focusing too much on processes ये वो. Yeah. We wanted to focus on authors. So it's not that much difficult like people think about. Yeah. हाँ, मतलब अगर कोई author अपना एक simple observation को एक story बनाना चाहता है जैसे मैं बनाना चाहती थी, वो author के लिए एक simple platform है जहाँ पे team help करती है उन्हें, and at the same time वो author अपने thought को reality बनते हुए देख सकता है. It's a simple dream to reality process, उसको क्यों complicate करना है, with technicalities. So how has the Indian publishing industry evolved in these till the time you started and till now if we talk about? Right. So, it's really kind of different from when I started. मेरी first book आई थी in 2012.
तब से अभी में there are so many authors who have come up who want to share their stories. Right. So कुछ changes जो हमने notice किए हैं over these years is of course that industry became more from monopoly of publishers to industry which was more open to authors. Okay. An industry that is empowering authors more now. तो एक मेजर चेंज तो वो है एंड सेकेंड चेंज ओवर द पीरियड ये है दैट इंडस्ट्री हैज बिकम मोर ओपन. पहले अगर सिर्फ 4 पब्लिशर्स थे और Right. उनकी चल रही होती थी या उनके हिसाब से इंडस्ट्री में ऑथर्स आ रहे थे, अभी एक ऑथर के पास में उतनी पावर है कि वो अपने थॉट्स को रीडर तक के डायरेक्टली भी पहुंचा सकते हैं. Right. सो इट्स मोर ऑथर सेंट्रिक, मोर काइंड ऑफ इवॉल्विंग कि ऑथर उस इंडस्ट्री का सेंटर बन जाए. Okay, but actually I have seen some self-published something. Yes. That's a term. So उसको भी अभी काफी ज़्यादा लोग use कर रहे हैं. So Definitely. the reason for that, like the reason is simple that authors want more kind of opinion sharing during the process and Okay. authors want to be a live part of it. मतलब अगर हम आज से 25-30 साल is there पहले any की another side of publishing houses like हाँ. so that authors are not choosing publishing houses and they just want to Definitely. yeah See, the thing is कि आज से अगर हम 25 साल पहले की बात करते हैं ना तो राइटिंग एक हॉबी थी. Right. कि ठीक है यार मेरी एक 9 to 5 जॉब तो है बट उसके साथ मैंने एक बुक लिख ली. Exactly. द रीजन वाज सिंपल कि हमें वहां से रिटर्न शायद उतने नहीं मिलते थे उस टाइम पे. ओवर अ पीरियड लोगों ने डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी शुरू किए, अनकन्वेंशनल करियर वो चूज करने लगे हैं. सो नाउ authors being authors earning from that is much more. So I think one reason जैसे आपने पूछा कि क्यों self publishing ज़्यादा चल रहा है, Right. the reason is the royalty share is much more as compared to traditional publishing houses. Okay. जहाँ हम 8-9% पे बात कर रहे थे ट्रेडिशनल में, आज हम 70 to 100% रॉयल्टी शेयर पे जा चुके हैं for Right. authors. Okay. So that is one of the biggest reasons for authors to change or have more power in the journey. प्लस Okay. एक टाइमलाइन इज द सेकेंड फैक्टर. जब सिर्फ 4 पब्लिशर्स होंगे और उनके साथ में 100 लोग पब्लिश कर रहे हैं, द टाइमलाइंस वुड बी लॉन्गर. Right. टुडे नो वन वांट्स टू वेट. इफ आई हैव एन आइडिया आई वुड वांट इट बिकम्स अ बुक. आई वुड वांट कि मेरे लिए वो एक सेगमेंट बने जहाँ पे आई कैन रीच आउट टू माई रीडर्स. Okay. सो टाइमलाइंस इज द सेकेंड एस्पेक्ट जिस वजह से सेल्फ पब्लिशिंग और पार्टनर्ड पब्लिशिंग ज्यादा अभी चलने लगे हैं. So if we talk about like see मेरे को कोई बुक लिखना है, so how to start that? Like हम directly आपके पास आ सकते हैं for all the guidance and everything, or like I just want to know कि are you just only providing the publishing services or apart from that also like the Sure. planning and everything? Yeah. सो हम लोगों का जो पूरा सेटअप है वो स्टार्ट ही होता है मेंटरशिप से. अगर आपने बुक लिखी है एंड यू थिंक कि हाँ आई एम गुड टू गो, आई डोंट नीड एनी हेल्प, देन वी गो अहेड विद पब्लिशिंग. बट लेट्स से कि आपके पास में एक बहुत अमेजिंग आइडिया है, यू हैव एन आइडिया अबाउट हाउ यू स्टार्टेड योर Yes, I only have idea कि Yes. मुझे एक बुक लिखनी है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है कि Correct. कैसे तो होता है. हम वहाँ उस स्टेज से भी हेल्प करते हैं ऑथर्स को इन Okay. कंसेप्चुअलाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग, राइटिंग. कई बार होता है लोगों के आइडियाज इतने अमेजिंग होते हैं बट द वे ऑफ राइटिंग वो उन्हें थोड़ा टाइम लगता है समझने में. सो आवर Okay. टीम इज वेरी वेलकमिंग. वी हेल्प पीपल फ्रॉम दैट स्टेज टिल पब्लिशिंग ऑल्सो. Okay. सो दैट इज हाउ वीव बीन काइंड ऑफ वर्किंग इन राइटिंग वर्कशॉप्स, वर्किंग विद फर्स्ट टाइम राइटर्स ऑल्सो. सो ये सारी चीजें हम लोग हमारे पूरे जर्नी में provide Okay, करते so हैं. the process होता है like from where it starts. What's the first process? Just tell me the whole process till publishing. Yeah. So let's say that you have an idea, you're a first time writer, you come to us and आपने बोला कि we need help with conceptualization also. Okay. So first step is to complete the book. Okay. या तो हमारे साथ या अपने एंड पे. द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू कंप्लीट द बुक. एक बार व्हेन द बुक इज कंप्लीटेड देन द नेक्स्ट स्टेप इज एडिटिंग. एडिटिंग जनरली लोगों को लगता है सिर्फ ग्रामर कॉमा होता है बट उसमें बहुत डिटेल्ड 3 लेयर्स होती हैं एडिटिंग की. Okay. Those 3 layers of editing like constructive editing, read through and beta reading. उसके बाद the cover designing happens, the Right. marketing strategy is created. After that we work on the typesetting कि book ultimately दिखेगी कैसे and then it goes into printing, then Amazon listing and distribution. So overall अगर हम बात करें तो in 20 days to 1 month this is the entire process of publishing. Okay. Yes. And if we talk about the success. So what is the success in this publishing industry, or if we talk about the author point of view? So success completely depends on 2 factors.
One is that how confident are you about your writing, Okay. and how confidently can you tell people about it. Even if you've written something really good and आप वो confidence convey नहीं कर पा रहे हो, तो there is a kind of miscommunication between your reader and you. Right. But अगर आपको लगता है that the book has potential, that confidence should translate into your marketing strategies also. Okay. And second is how well coordinated are you with your publisher. Okay. अगर पब्लिशर और ऑथर अलग अलग पेजेस पे है तो मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स लाइक प्लेइंग ऑन टू एंड्स ऑफ द क्रिकेट पिच. Right. आपने अगर गलत कर दिया रन आउट होगे ही होगे आइदर ऑफ द टू, राइट. सो वो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन द पब्लिशर एंड द ऑथर कि आप कितना सेम पेज पे हो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को लेकर. Right. हाउ यू नो वेल अलाइंड आर यू बोथ in terms of that. So ये दो factors play an important role in success of a book. अगर मैं बात करूँ अभी के टाइम पे, So success is something कि number of books कितना sell हुआ और this is something कि लोगों ने कितना उसको पसंद किया, because these both are the different terms. Correct. So what is success in this industry? so I just want to know commercially that. it is the sales figures. Yeah. In longer term अगर हम brand बनाने की बात करते हैं किसी भी author के लिए, then it is how much people liked it. Okay. It's also कि अभी हमने self publishing की बात So की. I'm so sorry to No interrupt problem. you. Yeah. So how many people liked it? ये कैसे पता चलता है? At the number of Generally, selling? Like उसके या तो according? नंबर ऑफ सेलिंग, उसके बाद में Amazon Flipkart पर जो रिव्यूज होता है, Okay. that kind of shows a lot of potential of the book. Generally जब हमें भी किसी ऑथर को अपने साथ में काम करने के लिए सिलेक्ट करना होता है, when their proposal comes, अगर वो ऑथर पहले से पब्लिश्ड हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जाके रिव्यूज देखना कि उनके रिव्यूज कितने हैं एंड वो रिव्यूज में रीडर्स ने क्या बोला है. तो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू नो Okay. इफ समवन लाइक द बुक और नॉट. Okay. And जो marketing है, जो publishing houses हैं, how they do marketing nowadays? Yes. So, for example, when I talk of our publication house, Mithas Services, we have a Bookstagram page named The Publisher's Bookshelf. It has a 40,000 organically grown reading community. So, our idea of promoting the book is that don't invest everywhere. Invest in places where you do get returns out of it. If you have a community who's interested in reading, Right. वहाँ conversion के chances ज़्यादा है ना, as compared to going with a 1 million का following जहाँ पे Actually. लोग हैं ही नहीं पढ़ने वाले. Exactly. So the idea is कि आप अपनी marketing strategy को optimize करो and put it at the right place. फॉर एग्जाम्पल अगर हम PBS पे कोई रील डालते हैं तो हमें पता है कि वहाँ से हमारे पास में DMs आते हैं रीडर्स के कि यार व्हाट इज देयर इन द बुक, यू नो वेयर कैन आई फाइंड मोर अबाउट दिस बुक. सो दैट इज वन स्ट्रैटेजी दैट वी फॉलो. एंड सेकेंड इज जो मुझे अभी तक मतलब 8 बुक्स में लगता है, आपका क्लोजेस्ट सर्कल आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग यू नो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. इफ आई नो 10 to 20 people in my close circle, if those 10 people are purchasing the book, writing the review for you, that is your first big push. उसके बाद में you go to the outer circles or people who don't know you. Right. ज़्यादातर ऑथर्स ये गलती करते हैं, वो शुरू ही करते हैं कि यार मैं पहले जाऊंगा जो मुझे कोई नहीं जानता, then I will come back to my circle, वो ऑटोमेटिकली खरीदेंगे. वैसा नहीं होता है. इट्स जनरली दैट यू आस्क फॉर हेल्प. डोंट बी हेजिटेंट कि मैं नहीं हेल्प नहीं मांगनी मुझे तो. Right. सो आस्क योर नोन सर्कल, योर फ्रेंड्स, फैमिली टू सपोर्ट यू एंड देन गो टू पीपल हु डोंट नो यू. वो एक ऑटोमेटिकली फिर बस क्रिएट हो जाता है. Okay. So if we talk about readers' point of view, मेरे personally question है. So the thing is like what is interesting about a book? See, like there is a person जिन्होंने कभी कोई book नहीं पढ़ी है, but they ठीक just है. want to start, right? So एक book में क्या attractive होता है, मतलब उसका जो front page होता है, title होता है या फिर colors, मतलब सबसे पहले आपको कैसे start करना है कि how to start reading? आजकल एक जो सेगमेंट है ना वाइब चेक का, आई रियली फील कि वो बुक्स में भी अप्लाई होता है. Right, exactly. कि इफ यू आर जस्ट स्क्रोलिंग थ्रू Amazon या अगर आप बुक फेयर में जा रहे हो, बुक स्टोर में जा रहे हो, इफ अ बुक का कवर और द ओवरऑल वाइब इज कॉलिंग यू आउट, देन आई थिंक Right. वो फर्स्ट स्टेप तो वही रहता है. हम बोलते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स Right. कवर, But at least हम लोग title पढ़ के ही लेते हैं, एग्जैक्टली. कभी. हाँ, उसी के बेसिस पे वी डिसाइड कि हमें ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. पढ़ना तो Exactly. उसके बाद हाँ, का हाँ, स्टेप वो तो second step. सो आई थिंक बुक कवर और बुक टाइटल और बुक ब्लर्ब जो होता है, जो हमारे बैक कवर पे लिखा हुआ होता है, Right. ये 3 चीजें हेल्प इन चेकिंग द वाइब दैट इफ इट्स Okay. मैचिंग विद दिस बुक और नॉट. Okay. And yeah, so if we talk about the books and the authors, so जब publishing house की हम बात करते हैं, so
if we talk about yours publishing house especially, so do you select कि आपको कौन से वाले authors को publish करना है और books को करना है, or you just randomly do it, or you're doing for everyone? नहीं, जनरली जब हमने शुरू किया था तब हमारे पास कम प्रपोजल्स होते थे. अभी इन 7 years वीव बिल्ट अ कम्युनिटी वेयर वी गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स. तो सब पब्लिश करना तो हमारे लिए भी ऑपरेशनली पॉसिबल नहीं होता है. सो हमारी सिंपल प्रोसेस है, हम सिर्फ एक चीज़ चेक करते हैं दैट क्या ये बुक रीडर्स को पसंद आएगी या नहीं. दैट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, दैट्स बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड द जॉनर दैट इज वर्किंग आउट. अगर वो चीज़ हमें लगता है कि वर्केबल है तो हम उसमें कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं लगाते, या हम ये नहीं सोचते कि यार ये 5 years का बच्चा है जिसने लिखी है, या ये 80 years के सर है जिन्होंने लिखा है. हमारा सिंपल लॉजिक रहता है दैट अगर हमें उस बुक पे थोड़ा भी बिलीफ लग रहा है तो वी गो अहेड एंड काइंड ऑफ पब्लिश द बुक. Okay. So that's the idea. Okay. So what do you think, like जो common mistakes authors करते हैं अभी जो कर रहे हैं, what do you think कि वो एक common mistake है जो सभी authors कर रहे हैं, even उनको नहीं करना चाहिए? आई थिंक एक जो मिस्टेक अभी मैं काफी कॉमनली देखती हूँ वो है द नो इट ऑल एटीट्यूड. मुझे सब आता है, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है. This is in the all industries, not only this industry. Agreed. वो ऐसा होता है कि मैं मेरे माइंड में सेलिब्रिटी ऑलरेडी हूँ. नाउ आई डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, बिकॉज क्योंकि आप उस माइंडसेट से आते हो इंडस्ट्री में दैट मुझे तो सब चीजें पता है. यू आर वेरी क्लोज टू एक्सेप्टिंग फीडबैक. यू वुड not listen to someone when they are giving you feedback, or not just feedback, even suggestions. So result of which मैंने कई बार देखा है that authors end up spending lakhs in places where there is no return. But on the contrary शायद उतने glamorous spaces नहीं है, but interesting spaces हैं जहाँ आप spend कर सकते हो. वहाँ छोड़ के you all of a sudden go ahead and do what you feel is right. होना वही है कि आप 1-1.5 साल वो करोगे, यू विल नॉट सी एनी ग्रोथ इन योर रैंकिंग ऑफ द बुक और द सेल्स. तो अल्टीमेटली देन यू विल ट्राई टू फाइंड सजेशंस. बट इनिशियली ही अगर हम थोड़े ओपन रहें तो दैट आई थिंक कैन रियली हेल्प इन ऑप्टिमाइजिंग योर बजट्स फॉर मार्केटिंग. Okay. So if someone is writing a book for first time, so वो आपके पास डायरेक्टली आ सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली. Like there is no any type of criteria कि आप पहले से ही एक famous author होने चाहिए और बिल्कुल नहीं. Okay. Because so there is a chances कि कोई new person भी select हो सकता है. 100%, 80% of our authors are first time authors. So we are absolutely open कि कोई भी किसी भी age group में किसी भी language में लिख रहे हैं, if they are interested to publish and market, we are more than happy to accommodate that. Okay. And there is a term in the publishing industry, it's called manuscript. हाँ. So what is this exactly? This is basically the script. जब हम पूरी बुक कंप्लीट कर लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, वो जब स्क्रिप्ट हम फाइनली पब्लिशर को भेजते हैं, दैट्स कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, द फाइनल वन जिसमें कुछ भी एडिटिंग की मतलब एडिटेड होने के बाद की नहीं, एडिटिंग के पहले से ही इट्स कॉल्ड द मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, उसके बाद वो एडिट होता है एंड then वो टाइप सेट होके फाइनल बुक बनती है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट स्टेप बाय स्टेप टिल लाइक स्क्रिप्ट टू पब्लिशिंग, तो आप मुझको एक एक वर्ड में एक बार स्टेप्स बताओगे? फर्स्ट, सो फर्स्ट स्टेप इज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग. ओके, कि किसके पास में कॉपीराइट रहना चाहिए बुक का. जनरली ऑथर्स के पास की भी बात कर लेते हैं. हाँ, बिल्कुल. या सो व्हाट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या बेसिक टर्म्स और कंडीशंस होते हैं? सो कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द पब्लिशर एंड द ऑथर, एंड सिंपल सा उसका फंडा ये है दैट किसके पास में उस बुक के राइट्स रहेंगे, किसका कितना शेयर होगा रॉयल्टी पे. ये कुछ राइट्स आर समथिंग ओनरशिप काइंड ऑफ ओनरशिप. हाँ, मतलब जैसे ये पॉडकास्ट इज योर आईपी, तो यू ओन दैट, राइट. इन अ सिमिलर वे स्क्रिप्ट एक ऑथर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. उसके राइट्स वो ओन करते हैं जब तक कि वो किसी और को देना. एंड इसमें ऑडियो विजुअल राइट्स होते हैं. सो अगर मैं और डीप बात करते हैं, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, लाइक वो कहाँ मैटर करता है? सो जनरली तो डॉक्यूमेंटेशन तभी मैटर करता है जब चीजें खराब होने लगे किसी के भी बीच में. सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप राइट्स ओन करते हो तो कल को जाके अगर आपकी बुक एक बेस्ट सेलर बनती है, राइट, लेट्स से कि एक प्रोडक्शन कंपनी है, वो आती है दैट वी वांट टू टेक इट एज अ मूवी. नाउ द अमाउंट इन्वॉल्व बिकम्स हायर देयर, राइट. दैट अमाउंट विल बी ऑफ द ऑथर अगर राइट उनके पास है. मान लीजिए कि उन्होंने राइट्स ही पब्लिशर को सेल कर दिए कंप्लीटली, तो पब्लिशर के पास में जाता है. तो मेनली तो राइट्स का यही रहता है. एंड सेकेंडली रॉयल्टी रहती है. तो रॉयल्टी शेयर जो रहता है वो डिपेंड करता है पब्लिशर और ऑथर के बीच के जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे है. हमारा जनरली 70 to 90% हम ऑथर को देते हैं. सो जो भी प्रॉफिट होएगा
उसका 70 to 90% गोज टू द ऑथर. नाउ लेट्स से अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो किसी को कुछ पता ही नहीं है ना वो बुक Exactly. किसकी है. वी डोंट नो. आई कुड से टुमारो कि हाँ ये तो मेरी बुक है. right. तो ये रीजंस हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड रीजन, जैसे आपने सेल्फ पब्लिशिंग बोला, तो सेल्फ पब्लिशिंग में बहुत सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं. वो सर्विसेज की क्लैरिटी के लिए द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ पब्लिशिंग में भी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है. अगर तो वो आप किसके साथ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट? अगर आप किसी भी पब्लिशर के साथ कर रहे हो सेल्फ पब्लिश, तो उनके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. अदरवाइज इवन इफ यू आर गोइंग ऑन KDP ना, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग पे भी खुद से भी अगर आप करते हो, ई बुक बना रहे हो, तो भी Amazon के भी पूरे प्रोसेस में उन्होंने मेंशन कर रखा है किसके पास क्या रॉयल्टी रहेगी, किसके पास क्या राइट्स रहेंगे. ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो वेरी क्लियरली मेंशन. ओके. सो इफ आई टॉक अबाउट कि मेरी एक बुक जो मैंने आपसे पब्लिश कराई एंड द अमाउंट चार्जेस द प्राइस फॉर दैट बुक इज 250 रुपीज. Yes. सो नॉर्मली कितना क्या होता है, मतलब इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियली टर्म्स? हर बुक का डिफरेंट होता है क्योंकि हर बुक की वॉल्यूम डिफरेंट है, उसके पेज नंबर्स डिफरेंट होते हैं. बट अगर हम एक मोटा मोटा बात करते हैं तो अगर हम 250 की बुक की बात कर रहे हैं, उसमें से Amazon के चार्जेस हम डिडक्ट करते हैं, जो डिलीवरी चार्जेस हैं, नेशनल रीजनल वो डिफरेंट रहते हैं. उसके बाद में देन देयर इज द वेयर हाउसिंग चार्जेस, मिसलेनियस कुछ चार्जेस होते हैं, वो आप डिडक्ट करते हैं बेस्ड ऑन वही हर बुक के वॉल्यूम के ऊपर है वेयर हाउसिंग चार्जेस भी. देन देयर इज द प्रिंटिंग कॉस्ट दैट गेट्स डिडक्टेड एंड देन फाइनली जो अमाउंट बचता है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द ऑथर एंड द पब्लिशर. तो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको जेनेरिक वे में देखें, अगर मेरा ये फोन है, इसकी सेलिंग प्राइस X होगी, बट उसका जो प्रॉफिट बचता है अल्टीमेटली दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द टू पार्टीज. सो ये जो प्रोसेस होती है फ्रॉम स्क्रिप्ट टू पब्लिशिंग, कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है? आई मीन कितना इसमें टोटल टाइम लगता है यूजुअली? मेरी जो फर्स्ट बुक थी दैट टुक मी ऑलमोस्ट 1.5 years थ्रू द जर्नी. आज जो हमने सेटअप किया है दैट टेक्स अस 20 days इन कंप्लीटिंग दिस होल प्रोसेस. सो डिपेंड करता है पब्लिशर टू पब्लिशर, बट क्योंकि हमारे पास में टीम ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, हर टीम एक सॉर्टेड वे में काम करती है, तो हमारा टाइमलाइन इज 20 days ऑफ पब्लिशिंग. जितनी मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई, आपने मुझे स्क्रिप्ट दी, वहां से लेके फाइनल बुक लाने में 20 days. ओके. अभी जो हम जैसे राइट्स की बात कर रहे थे, उसमें भी मेरे को भी एक फिर से क्वेश्चन आ रहा है माइंड में. सो जो राइट्स होता है उसमें नॉर्मली क्या होता है कि ऑथर्स के पास कौन से वाले राइट्स जो जाते ही हैं, जो यूजुअली प्रोसेस में होता है, और एक प्रोसेस ऐसी होती है कि बहुत रेयर वाली चीजें हैं कि ऐसा हुआ. अदरवाइज ऑथर के पास कौन से राइट्स होते हैं एंड पब्लिशिंग हाउस के पास कौन से राइट्स होते हैं? सो अगर हम मिठास की बात करते हैं एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर पब्लिशर्स, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हम ही ये चीज करते हैं, बट सारे राइट्स किताब के ऑथर के साथ ही होने चाहिए. दैट इज द आइडियल सिचुएशन. सो बी इट ऑडियो राइट्स, पॉडकास्ट या फिर ऑडियो बुक बनाने के, ई बुक बनाने का राइट, कल को कोई वेब सीरीज बनती है, कोई मूवी बनती है, विजुअल राइट्स, कोई भी ट्रांसलेशन राइट्स, सारे राइट्स जो हैं वो ऑथर के पास ही होने चाहिए. Because at last the idea was from yes that. exactly. And if you are going with a publisher, वो ऑटोमेटिकली अपना शेयर ले रहे हैं ना, या तो सर्विस फी में या फिर रॉयल्टी में. सो राइट्स जो हैं वो कंप्लीटली होने चाहिए ऑथर के साथ. एंड हमारे उसमें भी वही रहता है कि सारे राइट्स, कोई लैंग्वेज राइट्स हैं, कुछ भी है, वो ऑथर के पास ही रहेगा. ओके. सो ऐसी क्या रेयर सिचुएशंस होती हैं जो ये वाले राइट्स भी कई बार पब्लिशिंग हाउसेस के चले जाते हैं? मतलब ऐसी सिचुएशंस अगर आती हैं तो वो कौन सी वाली सिचुएशंस होती है? जनरली क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, let's say there is no contract in the picture. Now in that case there is nothing which is documented. Tomorrow I can say as a publisher ये तो book ही मेरी थी, it was not your book. So we've heard people who come to us, they're like, we really want to do something with the book but we can't because the publisher is not giving me the book now. So you know, हम जब दूर से देखते हैं it seems कि author की तो complete ownership है, but if there is no contract that's being signed then there is no discussion, right? There is a simple thing कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो पब्लिशर जो हाउस है, पब्लिशिंग हाउस, उसने वो भी अपनी ऑनरशिप कैसे दिखा सकते हैं? हाँ, सो उनके द्वारा तो पब्लिश हुई है, दे हैव पुट इट अप ऑन प्लेटफॉर्म्स. नाउ दे विल बी गेटिंग द मनी फ्रॉम Amazon फर्स्ट, राइट? सो वो तो प्रूफ करे नहीं करे, दे विल नॉट सेंड यू द मनी. That's the simple thing you can kind of look at it. So the thing is कि अगर आपका contract in place नहीं है, so then there's a lot of trouble that can happen, and generally होता भी है. People are disappointed that you know my book is doing well but I'm not getting a penny out of it. Right. So वो majorly contract इसीलिए important होता है. Okay. So
एक सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करते हैं लोग पब्लिशिंग को और ऑथर्स जो करते हैं, एंड रियलिटी इज टोटली क्वाइट डिफरेंट. तो वो नॉर्मली क्या ऐसा है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्साइट कर देता है, बट जब वो रियलिटी को फेस करते हैं देन द सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट. राइट. सो दिस इज ऑनरशिप और समथिंग एल्स. मुझे लगता है इसमें जो इंस्टाग्राम कॉपीज आजकल चल रही है ना लोगों की, वो बहुत बड़ा रीजन है. Okay. अब कई बार ऑथर्स ये देख के आते हैं कि मैं तो 2 दिन में बेस्ट सेलिंग बुक बना लूंगा या बना लूंगी, एंड देन व्हेन दे सिट ऑन द टेबल एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस, जो अभी हम बात कर रहे हैं, देन दे अंडरस्टैंड कि यार प्रोसेस तो 20 दिन की है, मेरे को तो बताया गया था कि 2 दिन में बेस्ट सेलर लिख लूंगा मैं. तो मेजरली मुझे लगता है जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ राइटिंग कोचेस हु आर पुटिंग अप मिसलीडिंग कमेंट्स आउट देयर दैट वी विल डू दिस इन 2 days. सो पॉइंट इज बेस्ट सेलर टूल की हेल्प से बनना तो बहुत आसान है, बट उसको मेंटेन करना इज समथिंग नो वन टॉक्स अबाउट. सो जो आप पूछ रहे हो ग्लैमर वर्सेस रियलिटी, द बिगेस्ट रीजन इज नो वन इज टेलिंग द ऑथर द रियलिटी दैट बॉस टाइम लगेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी एंड कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी. सो दैट इज आई थिंक वन रीजन वेयर द होल एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हैपेंस. ओके, एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि क्या होता है कि कई बार लोग देखने के बाद कि ओके उन्होंने एक बुक लिखी है, तो आप जब फेस करते हो रियलिटी, जो आपके पास ऑथर्स आते हैं विद द आइडिया, सो उसमें कितने रेलिवेंट होते हैं एंड कितने आर समथिंग कि ओके दे जस्ट हैव अ लाइन ऑफ आइडिया एंड वो आपके पास आ जाते हैं? आई थिंक 30% तो होते हैं जहाँ पे सिर्फ तो ये नंबर अभी बढ़ रहा है पहले इसकी कंपेयर में? हाँ. आपको क्या लग रहा है, मतलब कितना रेलिवेंट बढ़ रहा है? आई थिंक सोशल मीडिया से हमारे पास आने का नंबर बढ़ गया है. पहले लोगों के माइंड में होता था, वो मेल लिखते थे, टाइम लगता था, थोड़ा तो कंसेप्ट बनता था. अभी ऐसे आइडिया आया, ब्रेकअप हुआ है, मेरे को बुक लिखनी है, सोशल मीडिया पे मैसेज डाल दिया हमें कि अब आप पब्लिश करवा दो. तो दैट इज आई थिंक बिकॉज उनके पास में एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, हम अप्रोचेबल ज्यादा है, तो हमारे पास मैसेजेस एकदम तुरंत आ जाता है. इट्स एन इम्पल्स. आई एम टॉकिंग अबाउट कि नॉट ओनली मैसेजेस जो आपके पास सीरियसली आए हो कि एंड बट आपने जब उनका आइडिया देखा एंड स्क्रिप्ट आपने देखी होगी, देन यू फील लाइक ओके मतलब ये कुछ भी नहीं है. Yes, the ratio is somewhere around 30 to 40%. जहाँ पे we feel कि यार ये तो चैट जीपीटी से लिखवा के आ गई है स्क्रिप्ट, एंड लोगों को लगता है कि किसी को पता नहीं पड़ेगा कि हमने जीपीटी से लिखवाया है या जेमिनाई से लिखवाया है. बट ऑब्वियसली एवरीवन इज स्मार्ट इनफ, हर कोई एक एआई चेक करता ही है, प्लेजरिज्म चेक करता ही है. तो yes, 30 to 40% आई थिंक रिजेक्शन रेट हमारा रहता है. ओके, देन आप उनको कैसे बोलते हो ये चीज? बहुत डिफिकल्ट होता है. आपको बताना होगा. So I think editorial team is kind of pro enough in doing that. They've been working for a very long time. मेरे लिए अच्छा है that I'm not directly a part of that process. आपने कभी फेस नहीं किया डायरेक्टली कि आपको बोलना पड़ा हो something मैंने like that? अभी तक के कभी भी, because हमेशा से editorial का काम editorial नहीं किया है, but they kind of mention, हमारा मतलब एक जो difference है as compared to other publishers, हम mention करके बोलते हैं that ये problems हमें लगी हैं and that is why we are not going ahead. तो उससे 2 चीजें हो जाती है. Author knows कि there is something that they've read, and the second thing is that they also know कि ये मेरे script में problem है, I need to work upon it. तो ये प्रॉब्लम्स अभी भी आते हैं आपके साथ में, मतलब ऐसे वाले? सो डोंट यू थिंक कि आप इसका एक लाइक क्राइटेरिया बना सकते हो कि मतलब ऑथर्स का एक क्राइटेरिया, सो दैट यू कैन जस्ट फिल्टर आउट दीस पीपल? द थिंग इज दैट जिसने भी स्क्रिप्ट भेजी है उसने अपना टाइम एंड इमोशन लगा के भेजी है. तो अगर हमने वो टूल बेस्ड कर दिया, कर सकते हैं इजीली, बट अगर वो कर दिया तो हमें लगता है कि इट्स अ लिटिल अनफेयर टू द ऑथर. तो वी गिव इट द टाइम to read and we give them the feedback. उसके बाद उनके ऊपर है कि अगर उनके लिए सीरियस है तो वो उस पे काम करके वापस आए, नहीं तो they'll kind of move on. Okay, so कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको कोई भी स्क्रिप्ट मतलब ऐसा लगा हो कि ये नहीं चलेगा इतना, बट वो बहुत अच्छा चल गया हो? आई डोंट थिंक अभी तक के ऐसा मुझे कभी लगा है या हमारी टीम को ऐसे लगा है. येस, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बुक इतनी बढ़िया कर जाएगी. मतलब कोई एकदम नया जॉनरा आया एंड लगा कि यार ये बुक मतलब चलेगी नहीं चलेगी, एंड इट जस्ट काइंड ऑफ वेंट वायरल विद अ रील. सो होता है, वी आर ऑल्सो रॉन्ग एट टाइम्स, बट ऐसी कोई बुक अभी तक छोड़ी हो और बाद में रिग्रेट किया, वो नहीं हुआ है. Okay. So, what skills will author need beyond writing nowadays? Because there is some more things like social media and totally agreed. Yeah. So, I think the topmost skill is being an entrepreneur,
एज अ माइंडसेट, कीपिंग दैट ऑथरप्रेन्योर मैं बोलती हूँ. ऑथर की जर्नी पब्लिशिंग के साथ खत्म होती है. उसके बाद एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट होती है उस बुक को मार्केट करने के लिए. सो बीइंग एट द राइट प्लेसेस विद द राइट पीपल, talking about the book like we are doing right now. So that is very important. तो अगर मैं simple 3 चीजें बताऊं skill set में, one is definitely having a social media edge. Second, having a good publishing or marketing space जहाँ पे आपको guidance मिल पाए, where to market, what to do. And third is kind of being visible. आपने एक बुक लिखी है, बहुत अच्छी बुक है, बट अगर वो विजिबिलिटी ही नहीं है लोगों को, तो हाउ विल दे एवर गेट टू नो दैट द बुक इज रियली गुड. सो मार्केटिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन टुडेज टाइम ऑफ पब्लिशिंग. ओके, सो एज यू योरसेल्फ इज अ ऑथर, सो आपने अपना पब्लिशिंग हाउस होने के क्या बेनिफिट्स देखे हैं एज एन ऑथर ऑल्सो? मुझे तो नहीं लगता ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बिकॉज हमारी एडिटिंग टीम मुझे एकदम एग्जैक्टली वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो बाकी ऑथर्स को करते हैं. हम इक्वली उतना ही डिस्कशन करते हैं जितना दूसरे ऑथर्स कर रहे होते हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि ओवरऑल प्रोसेस हमने बिल्कुल अनबायस्ड रखा है. बी इट मी, बी इट एनीवन फ्रॉम द टीम, कोई भी लिखे. अनिकेत की बुक आई थी 2120, ही इज ऑल्सो अ कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट विद अस, बट उन्हें भी सेम प्रोसेस हमने फॉलो की. आई एम कमिंग अप विद माय 8th book now. Okay, can you show your book? Oh yes. मैंने खुद ने ही अभी पहली बार अनबॉक्स कर रही हूँ. Oh wow. So this is your 8th book, huh? Yes. So authors ही ये colors and cover book and everything decide करते हैं, और this is the editing team? The editing team plays a very important role in this journey because उनके आइडिएशन जो होते हैं वो मार्केट को और रीडर को भी ध्यान में रख के होते हैं. कई बार एज एन ऑथर ना हम बहुत क्लोज होते हैं किसी चीज़ के कि ये वाली मतलब मुझे पिक्चर चाहिए ही चाहिए, बट वो तो मुझे पता है ना व्हाई आई एम वांटिंग इट. रीडर को जो समझ आए वो एडिटोरियल टीम की तरफ से इनपुट्स आता है. ओके, प्लीज शो योर बुक. हाँ, यस. वाओ, यू कैन जस्ट शो इट टू कैमरा. Devanshi. I'm just gonna read the whole book. Absolutely. I'll give you my reviews. Absolutely. So, yeah, if we talk about, the trends. So, do you think like the trends killing originality of the books nowadays? Like if you talk about social media especially. I think पहले भी था ही. Nothing new as such as of now. But अभी बहुत ज़्यादा, Right. Initially कैसे था that हम books से trends बना रहे थे. That thrillers आ रहे हैं तो फिर thrillers ही thrillers हैं. Right. अभी it's quicker. We get to know कि what are people liking. So the research is kind of a little less time consuming, but मुझे लगता है trends पहले भी थे industry में, अभी भी हैं. So it's not that the trend is killing creativity, but yes, we also as a publisher get to know things earlier, that what is working, what is not working. Right. So that is kind of an advantage rather than a disadvantage. Okay. And एक कोई ऐसी आप skill या quality या आप बोल सकते हो किसी के person के बारे में कि उनको author बनना ही, सोचना ही नहीं चाहिए कि आप author बन सकते हो, ऐसा कुछ होता है पर्टिकुलर? नहीं, आई थिंक सब लिख सकते हैं, बट यस जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपको ये लगता है कि आई एम द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू टेक अप एनीथिंग न्यू फ्रॉम एनीवेयर, तब आप मत बनो ऑथर, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वेरी लेस सक्सेस इन द जर्नी. सो आई मीन I might have been proven wrong by people earlier. हो सकता है कि ऐसे लोग हों जो अभी इस एटीट्यूड के साथ भी सक्सेसफुल हैं, बट मैंने इन 7 years तो नहीं देखा है किसी को भी. Okay. So, what is that one truth you are scared to say publicly? But अभी आप पॉडकास्ट में बोल सकते हो because कई बार रियलिटी भी बाहर जानी जरूरी होती है. Yeah. बिल्कुल. तो I think मतलब one truth is that your first book is generally a learning experience. Okay. For an author also. For every right? author, Yeah. yes. So the first book is often a learning experience. It wouldn't be a bestseller overnight. Right. You will have to learn. You will have to put marketing inputs and only तब वो book बनेगी. And एक और truth additionally बता देती हूँ that not everyone in your friends and family का circle will purchase your book. Right. This is something that's the harsh reality. And that's for everyone, not for authors. Yes. Even for any video creator, any podcaster, for everyone. Yeah, yes, that's the truth. And I think वो सबको पता भी है अभी तो. अब तो पता भी है. Yes. Yeah.
So, what the questions do you the authors never ask, but उनको मतलब पूछना चाहिए from a publication house? Yes, I think सबसे important है contract. Okay. What are the clauses of the contract? This is super important. And second चीज़ है what is not included in the contract, because generally हम inclusions तो पढ़ लेते हैं, Right. but what is not included in a contract is also very important. So that's the second thing. Third thing is the royalty share. Okay. Who gets what royalty? And I really feel authors should spend time in understanding what is the team structure of a publication house. Okay. If you're going with a very big name who doesn't have time for you, it is not going to help you in a longer run. If you go with a team that is smaller, more kind of compact, you get more importance. So it's up to you to understand you want to be a small fish in a bigger pond, Right. or a big fish in a small pond. So that is something which is very important that authors should analyze. आप पुराने authors से पूछो कि what has been your experience working with Mithas or with any Right. other publishing house, and then make a decision that okay, this is something that aligns with what I think. Right. So don't run behind the name, run behind who's going to give you a better space to work in. Okay. So what is the reality? Like see, आपकी एक बुक बहुत अच्छी चलती है. बिल्कुल. So is there any guarantee कि आप एक बार मार्केट में आ गए हो तो आपकी नेक्स्ट जो बुक होगी doesn't matter कि उसमें इतनी वैल्यू है या नहीं है, वो भी उतना ही चलेगी? बिल्कुल नहीं. मतलब there is no Every book guarantee. is exam. Exactly. Every book is an exam. Okay. And हर book में अगर आप बहुत over experiment कर दे रहे हो and वो experiment नहीं चला तो audience will not like it. Yes, if you have been consistently writing well, then Right. there are chances कि 3 books के बाद 4th book मैंने blindly खरीद ली. But there is people जो सिर्फ नाम से बुक खरीदते हैं. हाँ, I personally know some people कि जिनको सिर्फ राइटर ऑथर से मतलब है कि ओके Correct. कि उनकी बुक है सो लेट्स टेक इट. सो उसमें कितनी सच्चाई होती है फिर? है, सच्चाई है, बट द परसेंटेज इज वेरी लेस. आज के टाइम में एक इंडियन कंज्यूमर अगर कुछ भी खरीद रहा है, सो दे नो आई एम स्पेंडिंग $300 ऑन समथिंग, दे विल मतलब होता है ना ठोक पीट के ही खरीदेंगे. सो दैट इज समथिंग दैट इज काइंड ऑफ प्रेवलेंट इन द इंडियन कंज्यूमर राइट नाउ. ओके. एंड इफ यू टॉक अबाउट ई बुक्स एंड सो ये आपका अगर हम पब्लिशिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कितना इफेक्ट कर रहा है? बिकॉज अभी बहुत ज्यादा चल रहा है Correct. एवरीथिंग इज ट्रेंडिंग, तो थोड़ा Yes. इफेक्ट तो आया होगा. Yeah. आया, बिल्कुल आया. कोविड टाइम्स में आई थिंक ई बुक्स बिकेम अ वेरी हाउस होल्ड थिंग. जिनको नहीं भी पता था, Right. people in their late 60s they also started to read on Kindle. So it's important that हर प्लेटफॉर्म पे बुक हो, be it audible. अभी Okay. I know a lot of people जो ड्राइव करेंगे दिल्ली टू Exactly. गुड़गांव They and just they'll want be to like listen. हाँ मैंने एक बुक Yeah. खत्म कर ली हाँ. क्योंकि उन्होंने रास्ते में सुन ली वो book. Actually. So it's important कि as an author and as a publisher आप अडॉप्ट करते जाओ नई चीजों में. ओके. एंड हर प्लेटफॉर्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखो कि ठीक है ना, इट्स अ वे टू रीच अ रीडर. Exactly. वो प्लेटफॉर्म आपके लिए चैलेंज या कंपटीशन नहीं है. इट कैन बी योर वे ऑफ रीचिंग आउट टू द रीडर. सो यहाँ पे कॉस्ट का भी डिफरेंस आता है. सी जैसे अगर हम हार्ड Correct. कॉपी की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हाँ. वो प्रिंटिंग का भी कॉस्ट उसमें जाता था. Yes, एंड इफ वी yes. टॉक अबाउट ऑडियो बुक्स नाउ, ई बुक्स, तो उसमें चार्जेस में अगर इफ यू कैन लाइक एक्सप्लेन कि कितना कौन से वाला बेनिफिशियल होता है अगर हम कंपेयर भी करते हैं तो. देयर इज अ कॉस्टिंग टू ऑडियो बुक्स. Okay. जो रिकॉर्डिंग कॉस्ट होती है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की कॉस्ट होती है. सो ऑडियो बुक्स आई वुडंट से इट्स वेरी अफोर्डेबल पर से. हाँ, कंज्यूमर के लिए तो अफोर्डेबल है ही, Okay. बट अभी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट इज प्रिटी हाई. बट नॉट फॉर ऑथर. Yes, but for the publisher or for the person who's working on it. Okay. But yes, ebooks is much more affordable for everyone. The Right. only thing is where I have seen the difference. Ebooks का trend आया, बहुत ज़्यादा था वो trend. But eventually people are coming back to hardcover क्योंकि ना Yeah. उन्हें वो book को पकड़ना है. पकड़ना है, They want to smell actually. the book. And I am And I one personally among think those there is a also. segment for every type of people. Yes, Some people yes. just want to buy the books. Correct. कि उनको खरीद के ही पढ़ना है. हाँ, And हाँ. there is different type of people की जिनको okay चल सुनना जाएगा. है. हाँ, I know बट people वो वहाँ जो पे पढ़ने वाला सेगमेंट अपना है. बिल्कुल Right. है. आई नो पीपल जो ई बुक लेते हैं, देखते हैं कि बुक में मजे आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर उन्हें मजे आ रही है तो दे विल ऑर्डर अ पेपर बैक एंड रीड इट Right. अक्रॉस. सो एंड वो एक वो भी रहता है क्योंकि दिस इज माय बुक और मैं इसको Yes. दोबारा से भी पढ़ सकती हूँ. एग्जैक्टली, बिल्कुल. Right. तो आई थिंक हर तरह के रीडर का हर तरह का एक स्पेस है. एंड एज अ पब्लिशर आई लुक एट एवरीथिंग एज अ वे. मेरे लिए तो ब्रिज है रीडर तक के पहुंचने के लिए. Right. सो आई लुक एट इट दैट. सो व्हाट इज द रियल रीजन नॉर्मली बुक्स फेल्स? मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक आपने देखा हो कि कॉमन रीजन ये होता है मोस्टली जो बुक्स फेल होता है उनका?
आई थिंक लर्निंग एक्सपीरियंस है हर किसी के लिए. वन वेरी बिग रीजन इज हैविंग अ कम्प्लीटली अनरिलेटेड कवर. बिकॉज लाइक वी वर बोथ डिस्कसिंग कि हम देखते तो हैं ना कवर पे कि क्या है. अब अगर मैं सोशल मीडिया की बुक पे माउंटेन्स बना दूं अभी, तो इट विल नॉट बी रेलिवेंट फॉर समवन. उन्हें लगेगा दिस इज अ नॉवल. सो इट्स अ कंप्लीट मैसेज मिसमैच ऑफ व्हाट यू वांट टू टेल एंड व्हाट द रीडर इज काइंड ऑफ अज्यूमिंग. एंड समटाइम्स ऑथर्स को लगता है कि आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस इज अबाउट, बट आप नहीं हो ना अवेलेबल जब कोई स्क्रॉल कर रहा है रात के 2 बजे कि भाई कौन सी बुक लूं मैं, या यू आर नॉट अवेलेबल व्हेन a reader is coming in the bookstall. So I think that is a very important reason. And second reason is that you feel that my book will become a bestseller without me doing anything. So in that case, it doesn't reach the right audience despite it being a good book. So just tell us one golden rule for first time authors. One golden rule is that focus on writing first, publishing as a secondary option. Don't write for the glamour of publishing. Write for yourself, and then glamour will follow, as a sub part of it. So yeah, thank you so much for sharing all these like insights about the publishing Thank industry. you. And this is my first podcast about this industry. Even I have lots of personal questions which I asked to you. Yes. And Thank मुझे you लग so रहा है मैंने much. फ्लो में ज्यादा ही इंफॉर्मेशन दे that's दिया. good, that's good. आपको podcast के बाद उसके benefits भी दिखेंगे. Thank you so much. Thank you for so much having for me. coming. Thank you.